पीपल यूज टू कम अंदर बैठ करके स्टील की प्लेट में हम लोग सर्व करते हैं प्रॉपर बैठ करके वी हैव अ सिटिंग अरेंजमेंट एंड इट्स अ प्रॉपर मील दाल चावल सब्जी रोटी एस सबूरी के नाम से हमने होममेड पिकल स्टार्ट किया एंड करते करते हमारी 20 लोगों की मेट्स की टीम बन गई। मुझे कुछ ऐसे चैलेंजेस जानने हैं जहाँ आपको एक्चुअली लगा कि नहीं हो रहा है या नहीं हो पाएगा एंड हाउ डिड यू ओवरकम ऑल ऑफ दैट? अच्छी खासी लाइन लगी हुई है, पतीला बाहर गिर गया दाल का और राइस है हलवा है चपाती है एंड पीपल स्टार्टिंग आज तो खाना कैसे खाएंगे, दाल तो सारा गिर गया। 8 to 10,000 लोगों का भंडारा बनता है। अच्छा, दैट इज नॉट 5 रुपीज इवन, फ्री ऑफ कॉस्ट। काफी सारे स्लम एरियाज हैं अक्रॉस इंडिया जहाँ अभी तक रीच नहीं है लोगों की। एज पर मेडिकल रिपोर्ट आई लॉस्ट माई विजन, आई एम ब्लाइंड। उदी इज सो पावरफुल, आई एम द विटनेस कि कैंसर की बीमारी तक ठीक हो जाती है। All right, hi everyone, welcome back to the Skillset School. I always say this is that one school that you never knew you needed, but today it's a little, something different that we're coming up with. It's not something that you'll get a lot of knowledge from this because it's a kind of awareness that we wanted to do because we already have around 4K of community right now. So what I want from you people is to be a little unselfish when you watch the video because this is something very close to my heart and I know there are people who are putting in a lot of effort and all they just need is somebody to help them out with all of those things. So I want you to be a little unselfish again while watching the video. It's an awareness that we are creating and we're going to support them in whatever way we can, either by promoting them, either by letting people know about them and all of that. So yeah, we'll try to keep it little short, crisp, and just an awareness podcast rather than something that you will be learning a lot from. Although there are so many miracles that she's going to talk about, there are so many things that she's going to talk about. You will get to learn, but that won't be just from the perspective of learning. So that's all. Let's see what is in the video itself. I welcome you, ma'am, and how are you feeling? Om Sai Ram. Namaskar to everyone. I'm blessed to be here actually, and thanks Charu. Thank you, ma'am. Really, I don't have words actually, but after meeting you, it's yes. I'm Ruby Sharma, founder of Sai Shraddha Saburi Times, which we are running a magazine that is bilingual since last 22 years, and which is globally worldwide. We have a very largest circulation, and that is dedicated to Shirdi Sai Baba, and very well connected with Shirdi Sai Baba Sansthan. We do share their devotees' experience, miracles, stories, but everything A to Z. You think about Sai Baba, you'll get it information. That is how. And if we talk about Shirdi Sai and Pune Rasoi, so we are, as you said, 5 rupees में भरपेट खाना एवरी डे। और ऐसा नहीं है कि हम लोग बाहर खिलाते हैं, पीपल यूज टू कम अंदर बैठ करके स्टील की प्लेट में हम लोग सर्व करते हैं प्रॉपर बैठ करके वी हैव अ सिटिंग अरेंजमेंट और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है कि लोग बैठ करके टू मेक देम सेल्फ डिपेंडेंट प्लेट अपनी वॉश करके रख के जाते हैं एंड इट्स अ प्रॉपर मील, दाल चावल सब्जी रोटी। जैसे आज थर्सडे है तो आज हम लोग का कड़ी आलू की सब्जी हलवा चपाती राइस चटनी सैलेड। It's a full meal actually. और भरपेट खाना and yes I can say 5 rupees. काफ़ी लोग बोलते हैं कि 5 rupees why? This kitchen which we are running, शिरडी साईं पुना रसोई, इसको हमें almost 17 years हो चुके हैं। पहले कोविड से पहले हम लोग फ्री खिलाते थे, ठीक है, और कोविड में वी वर ब्लेस्ड कि बिकॉज तब तो मैं खुद ही बनाती थी एक्चुअली। तब हमारा था टारगेट 150 to 200, दैट्स इट। हम लोग खुद बना करके अपने घर में ड्रम्स में करके स्लम एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है। सो एक दिन जिस दिन लॉकडाउन हुआ था फर्स्ट डे दिल्ली, तो आई पैक्ड फूड, आई केप्ट इन माई कार, और हम लोग जैसे ही जाने लगे तो ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स हमारी सोसाइटी के बोले कि नहीं मैम लॉकडाउन लगा हुआ है, आज तो आप कहाँ ही जाओगे। मैंने कहा अरे इतना सारा खाना बनाया हुआ है, लोग वेट कर रहे हैं मेरा। तो फिर हम निकले और हमें ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया, ठीक है, कि भाई आप यू कैन गो, हाँ आज तो पूरा लॉकडाउन है, दोगे किसको? आप ऐसा करिए पास बनवा लीजिए जाके। हम लोग पुलिस स्टेशन गए, हम बैठे रहे 2-3 आवर्स, मतलब
इतना रश था, मतलब हम लोग बैठे ही रहे. इवन आई डेंट रियलाइज, मतलब मुझे भी खुद को रियलाइज नहीं हुआ कि आई एम फ्रॉम मीडिया, आई हैव अ प्रेस कार्ड, तो आई शुड टॉक टू देम. तो हम लोग बैठे रहे. उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि थोड़ा सा मैं फ्रस्ट्रेटेड कि खाना पूरा बेकार हो रहा है, इट्स वेस्ट ना. एग्जैक्टली. सो आई वेंट टू द ऑफिसर कि सर दिस इज माय प्रेस कार्ड. तो ही स्टार्ट लाफिंग कि मैम आपको कौन रोक रहा है, आप तो जाइए, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम. दैट डे इट वाज माय जर्नी स्टार्ट. मतलब जर्नी तो खैर बहुत पहले से था, बट मुझे लगा कि यस दिस गिव यू द एनर्जी. तो आई थिंक दैट वाज मैसेज फ्रॉम बाबा. एंड वी जस्ट पुट द स्टेटस, व्हाट्सएप पे हमने स्टेटस लगाया था दैट डे 1. एंड 3 years से जो कोविड चला है, 350 फैमिलीज को वी वर ब्लेस्ड टू सर्व देम. हम लोग ग्रॉसरी, मेडिसिन और कोविड पेशेंट्स को, आई हैव अ लिस्ट, और बहुत सारे लोग जानते हैं उनके डोर टू डोर. एंड मी, माय हस्बैंड, माय फैमिली, दे वर ब्लेस्ड. मैं खुद बनाती थी और मेरे हस्बैंड डिलीवर करके आते थे, और बच्चे लोग पार्सल करते थे, पैकिंग करते थे, सबकी नेम स्टिकर्स के साथ. वो मतलब कैसे वो जर्नी स्टार्ट हुई, विदाउट ब्लेसिंग्स नहीं पॉसिबल था. और उसके बाद सोसाइटी में ही कोविड में लॉकडाउन था, तो मेड्स वगैरह को तो फायर कर दिया गया था. दे डोंट अलाउ. अब उनका घर कैसे चलेगा. तो एक दिन हमारे यहाँ एक मेड, शी स्टार्ट क्राइंग कि मैम आपने तो पैसे दे दिए बट नोबडी इज अलाउड टू गिव अस. तो मेरा घर कैसे चलेगा, वी आर हंग्री, आप कितना राशन दे दोगे. दिस इज मनी तो एक बेसिक नीड है ना, आपको चाहिए दवाई के लिए, मेडिसिन है, छोटी छोटी सी. तो दैट डे मैंने कहा ठीक है, मुझे ना अचार बनाना आता है, तो लेट्स मेक इट पिकल. सो एस सबूरी के नाम से हमने होममेड पिकल स्टार्ट किया. एंड करते करते हमारी 20 लोगों की मेड्स की टीम बन गई. ठीक है. और वो हमारा पिकल, मतलब इट्स प्योरली होममेड पिकल, और बहुत अच्छा, इट्स अ हॉट प्रोजेक्ट. Oh, nice. It's still growing, right? Yes. A lot of that. And that same time, we have 140 kids also. Okay. Slum ke. We adopt them and we are giving them free education. Oh, nice. Totally free of cost. तो उनकी डे टू डे जितनी भी डेली नीड्स होती हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं. हमारे सामने ही आप देखिए 14 years तो हमें साईं गुरुकुल को चलाते हो गए. तो जितने बच्चे हमारे ग्रो करते हैं, जैसे किसी ने 10th पास आउट किया, तो हमारा टारगेट होता है उनको कंप्यूटर एजुकेशन देना. तो वो हम उनको कंप्यूटर एजुकेशन देते हैं. और अब जैसे आजकल समर वेकेशंस हैं, तो आजकल हमारे वर्कशॉप्स चल रही हैं, जो हमारी 14th प्लस 14 years, अबव 14 years गर्ल्स को हम लोग ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखा रहे हैं. एंड माई हॉबी एक्चुअली सिंस, मतलब बचपन से मेरी हॉबी रही है हैंडीक्राफ्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट्स. तो आजकल वेस्ट मटेरियल्स वो लेकर, आज ही बच्चों को सिखाया, बैंगल्स लेकर आई थी घर से, जितनी भी आपकी वेस्ट बैंगल्स हैं वो लेकर आओ पुरानी, और उसमें हम वॉल हैंगिंग्स बनाएंगे. तो दे डेकोरेट. आपके यहाँ पुरानी प्लेट, मतलब हैंडीक्राफ्ट्स में देयर आर डिफरेंट. ड्यूरिंग दिवाली हम लोग दियाज बनाते हैं. तो इट्स हैपनिंग एंड किड्स आर एंजॉइंग एक्चुअली. बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है वो अपना ग्रो करते हैं. That's how we proceeding. I mean, this is so nice. मुझे ऐसा लगता है इसमें इतनी सारी अंदर बातें हैं करने के लिए और इतनी सारी चीज़ें हैं बताने के लिए. पर मैम मुझे ये जानना है कि कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करने के बाद, लाइक यू नो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस, जैसे मैं बोलूँ अभी लॉकडाउन वाला केस था, दैट वाज अ ब्लेसिंग फॉर अस. ऑल्दो मुझे लगता है सारे चैलेंजेस कुछ ना कुछ ग्रोथ लेके आते हैं, बट मुझे कुछ ऐसे चैलेंजेस जानने हैं जहाँ आपको एक्चुअली लगा कि नहीं हो रहा है या नहीं हो पाएगा, एंड हाउ डिड यू ओवरकम ऑल ऑफ दैट. देखिए, जैसे लॉकडाउन कोविड में सारी शॉप्स बंद थी, और यस बहुत सारे चैलेंज ऐसे. एक दिन ऐसा आता था कई बार कि आज तो ग्रॉसरी बिल्कुल ख़त्म है, एंड इवन वी डोंट हैव टाइम कि हम जा कर के लेकर आए. बट कहते हैं ना कि यूनिवर्स पावर इज देयर, समथिंग इज देयर. तो ब्लेसिंग्स, इफ यू हैव फेथ, तो वो ऑटोमेटिकली काम नहीं रुकता. यू थिंक इट विल हैपन. तो हम लोग मॉर्निंग में आज सोचते थे कि आज ये काम, कल का पता नहीं क्या होगा. बट इवनिंग में कहीं ना कहीं से किसी की कॉल आ गई, किसी से, मतलब इट्स हैपन. It's just a blessing. Blessings, yes. Because I feel every moment. It's without blessings you can't move on. Yeah, I feel like कि जैसे हमारे उसमें ना हिंदू बिलीफ में जब हम गुरुद्वारे में भी ऐसे सर्व करते हैं ना, तो जो भी प्रसाद होता है ना उसको लाइक वी डोंट ओपन इट, वो उसको ढका हुआ रखते हैं कि जिसको मिलना होगा या जितना मिलना होगा, या उसके अंदर भगवान जी अपने आप उनकी प्रेजेंस की वजह से ऐसे होता है. डू यू बिलीव इन समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? आपके यहाँ भी होता है? हमारे यहाँ जो खाना बनता है, सुबह 5:30 हमारी किचन स्टार्ट होती है. ठीक है. वी हैव
आप देखो 6,000 चपाती हमारी एवरी मील बनती है, ओके एवरी टाइम। वी हैव चपाती मेकिंग मशीन, डो मशीन, और मतलब आपको पेड़ा डालना है, रोटी अपने आप बन करके निकलेगी। ठीक है। और कुक मेरा, हमारी टीम अच्छी है सुबह मॉर्निंग में, दे आर हेल्पिंग अलॉट, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। बहुत अच्छे से हमारा खाना मैनेज। सबसे पहले इवन आप कभी आओगे ऑल कम्युनिटी, बिकॉज अगर हम बच्चों की बात करें तो मेरे पास हर कम्युनिटी के लोग हैं, बट इवन इफ दे आर सिख, दे आर मुस्लिम, वो भी आएंगे तो सबसे पहले अगर टॉफ़ी भी है तो वो बाबा को भोग लगता है। अरे तो सबसे पहले दे ऑफर द भोग। हाँ। और इवन जो कम्युनिटी जो खाना खाने आते हैं, लेबर क्लास, वो भी सबसे पहले लाइव दर्शन चल रहा है शिरडी साईं बाबा का। अच्छा। और बाबा सामने बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले बाबा को प्रणाम होता है, ओनली देन दे स्टार्ट। और आपकी साईं जो मतलब जर्नी, शिरडी वाली जर्नी कैसे शुरू हुई? हाउ डिड ऑल ऑफ दैट स्टार्टेड? ही एक्चुअली आई एम ब्लेस्ड बिकॉज बहुत सारे मिरेकल, जैसे कहते हैं ना, ही हैज़ चेंज माई लाइफ। अगर आप कहो, अगर आप 2002 में आई स्टार्टेड, आई एम अ कॉर्पोरेट person actually. Okay. I used to run Gurgaon City newspaper, which is very renowned band. 18 years I have run that show. Weekly dose of Gurgaon, and आप देखिए Commonwealth Games में we were the event partner. Oh nice. 2010 में हमने किया था, but उसके बाद Baba has changed my life. Because we all are chosen by him. Without his blessings, without his permission, we can't step in. तो गुड़गांव सिटी लॉकडाउन, जब कोविड हुआ तो लॉकडाउन में गुड़गांव सिटी it's closed. Now I'm totally into सेवा. सेवा पहले भी थी, but that time not daily, right? That was Thursday, Saturday, Sunday. मतलब जब भी कॉर्पोरेट से टाइम मिलता था या जब नहीं 3 days फिक्स थे हम लोग के। अच्छा, ओके। 3 days फिक्स थे, but now it's after COVID, it's become daily now. Every day. और इतनी मतलब कैसे होती है सेवा, आप मतलब छोटे एक्सपीरियंस। अब देखिए लास्ट 15 days पहले काफ़ी बड़े बड़े पतीले, मतलब आप देखो 700 to 800 लोगों का खाना बनता है, तो फोल्डिंग टेबल्स भी पुट आउटसाइड। जो हमारा स्टाफ है किचन का, उसने, दैट जेंटलमैन, ही पुट द पतीला बाहर, और वो टेबल को आप हल्का सा मूव करोगे तो स्टेप से तो गिर जाएगा। अच्छी खासी लाइन लगी हुई है, पतीला बाहर गिर गया दाल का, और राइस है, हलवा है, चपाती है, एंड पीपल स्टार्ट थिंकिंग आज तो खाना कैसे खाएंगे, दाल तो सारा गिर गया। दाल मखनी बना हुआ तो क्या होगा। एंड आई वाज स्टैंडिंग, तो मैं बाबा की तरफ देख रही हूँ, अब बताओ। बाबा मुस्कुरा रहे हैं कि भूखा थोड़ी कोई जाएगा। तो हमारा स्टाफ के लिए जो निकलता है, मैं इमीडिएटली मूव करी किचन में, मैंने उसको ग्रेवी बनाया, और लोग बाल, मैम ये तो कितना 20-25 लोगों का ही खाना है ना, कैसे होगा। तो आप मानोगे उस दिन, दैट डे, यूजली हमारा 700+ लोगों का खाना जो हमारा जाता है कूपन्स, ठीक है, उस दिन हमारा अराउंड 900 पीपल है। और मतलब मैं, इफ़ यू वांट आई कैन शेयर द वीडियोस, लोग कहेंगे आज तो हमारा वैरायटी ऑफ फूड हो गया, आज हमारा पार्टी हो गया। तो मतलब ये दिस इज ऑल ब्लेसिंग्स। आप खड़े हो, मतलब दिस आर विदाउट हिज ब्लेसिंग्स नथिंग इज पॉसिबल। तो सिर्फ लोगों का अपना खुद का विश्वास होना चाहिए। यू कैन डू, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आप अगर विल पर अपना स्ट्रांग रखोगे तो यस, यू कैन डू एनीथिंग। और मैम मुझे ये जानना है, जैसे यू वो वर्किंग कॉर्पोरेट में ना, देन कोविड के बाद ऑल ऑफ दैट स्टार्टेड, तो अभी हाउ आर यू मैनेजिंग ऑल ऑफ दिस? मतलब फंड रेजिंग हो गया, ऑपरेशंस हो गया, वॉलंटियरिंग हो गया, ऑल्दो देयर आर पीपल जो हमेशा हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, बट स्टिल बेस बना के रखना है। यू ऑल्सो हैव दैट न्यूज़पेपर वाला, वो अभी खुद का ही चल रहा है, तो हाउ ऑल ऑफ दिस इज गेटिंग मैनेज्ड? देखिए मोस्टली तो हमारा जो मैगजीन है, उसमें हमारे पास जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं और हमारे सब्सक्राइबर है, वो हम लोग का सपोर्ट होता है एक्चुअली। यस, सपोर्ट अभी फाइनेंशियल सपोर्ट और जैसे ग्रॉसरी का सपोर्ट सच नहीं है, बट मैं ये कहूँगी कि हाँ, काम कभी नहीं रुका और सेवा कभी नहीं रुकी। मतलब आप चाहे वो बच्चों की एजुकेशन के लिए बात कर लो, हम चाहे जो लंगर सेवा का है उसका, मतलब हम सोचते हैं वो काम हो जाता है, बट ऐसा कहें कि हाँ हमारे पास सेवा रेगुलर आती है, वॉलंटियर्स अभी हमारे पास नहीं है एक्चुअली। तो वी हायर द टीम एक्चुअली, बिकॉज वी कांट डिपेंड, बिकॉज हम लोग का तो डेली है। तो हम कमिटमेंट, वी आर कमिटेड ऑन एवरी डे। तो अगर वॉलंटियर्स पर कमिटेड होंगे तो नहीं रह पाएंगे। तो वी हैव अ स्टाफ, ठीक है, हमने हायर की है टीम। तो एंड वी आर ब्लेस्ड, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, इट्स लाइक माय फैमिली। एंड वॉलंटियर्स भी जो हैं
इट्स मोर देन माई फैमिली एक्चुअली। बिल्कुल फैमिली की तरह काम करते हैं, बिकॉज डेली सेवा जो हो रही है वो तो हो रही है, इसके साथ साथ हमारा जैसे गुरु पूर्णिमा है, अभी रामनवमी, तो उस दिन हमारा 8 to 10,000 लोगों का भंडारा बनता है। अच्छा, दैट इज नॉट 5 रुपीज इवन, फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी अभी 15 डेज पहले रामनवमी थी, तो उस दिन हमारा भंडारा के साथ साथ हमने छबील बांटी थी। दैट वाज 501 लीटर ऑफ मिल्क, रूह अफ़ज़ा एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ छबील, आई थिंक कच्ची लस्सी जिसको बोलते हैं, तो क्योंकि गर्मी है, टू बीट द हीट, उस दिन हमने छबील। तो वॉलंटियर सेवा के लिए अपने आप वो कैसे चलता है पता नहीं, मतलब कौन आ रहा है, कैसे बट रहा है, बस यू नो वो हो जाता है बस। ठीक है, मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमने भी अपना, वी जस्ट हैव टू लीव इट ऑन गॉड। एंड अभी क्या प्लान है, मतलब हाउ आर यू प्लानिंग टू स्केल दिस अप? आर वी प्लानिंग टू डू एनी सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप कहीं और, या फिर नहीं? यस, वी आर लुकिंग फॉर, बिकॉज मेरे पास काफ़ी सारी कॉल्स भी आती है, बिकॉज काफ़ी सारे स्लम एरियाज हैं अक्रॉस इंडिया जहाँ अभी तक रीच नहीं है लोगों की। तो यस, बिकॉज आई डू रिसीव ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डेज। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि कुछ लोग हमारे साथ जुड़ें एटलीस्ट, ताकि हम इस रसोई की एटलीस्ट शिरडी साईं अन्नपूर्णा रसोई शुड हैव ब्रांचेस। और हमारा टारगेट है कि अगर हमारे पास सपोर्ट आने लगे तो इवन आई डोंट माइंड टू चार्ज 5 रुपीज़ मुझे तो अभी हमारा जो ब्रांच है वो एग्जैक्टली पड़ता कहाँ है, इफ द ऑडियंस वांट्स टू नो? दैट इज द्वारका सेक्टर 1 के पास है, मधु विहार। इट्स अ स्लम एरिया, जस्ट बिटवीन द्वारका एंड डाबड़ी मोड़। हाँ, तो अभी वहाँ पे वी आर सिचुएटेड एंड देन वी आर प्लानिंग कि जहाँ भी हम ब्रांचेस खड़ी कर पाए विद दिस सपोर्ट। और मेन हमारा टारगेट है कि हम जितने भी हॉस्पिटल्स के बाहर कुछ वैन्स पहले हम अपनी गाड़ी से करते थे। अच्छा, बट बिकॉज ऑफ अभी थोड़ा सपोर्ट नहीं है, तो बिकॉज एक जगह ही आपको इतने सारे लोगों का करना है, तो थोड़ा सा फेसेस हम लोग करते हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अभी हमारा टारगेट है एटलीस्ट 2 वैन्स वी इमीडिएटली वांट, बिकॉज हम लोग बच्चों के साथ साथ हमारे इवेंट्स भी होते हैं। ओके, हम स्पेशली एबल बच्चों को प्रमोट करते हैं, वट एवर दे हैव टैलेंट। और जो हमारे पास स्लम के भी बच्चे हैं उसमें से भी कुछ हमारे बच्चे दे आर स्पेशली एबल्ड। ओके, एंड अब कोई डफ एंड डम है, तो गाड़ी वी डोंट हैव दैट व्हीकल, तो व्हीकल की वजह से भी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे आ नहीं पाते हैं। तो फिर उन्हें उनके नियर बाय उनके जो पार्क है वहाँ जाकर के उनको एजुकेशन दे देना, उनको एंटरटेन कर देना। बट इफ यू हैव अ स्पेस एंड इफ यू हैव अ सपोर्ट, सो वी कैन पिक देम एंड ड्रॉप देम, राइट। so that is our target. I mean, I feel like अभी बहुत ज़्यादा अगर if we from the podcast as well, guys, if we get any sort of support, how should they reach out to you if they want to volunteer into anything or start anything? We are on social media, शिरडी साईं अन्नपूर्णा रसोई सक्षम केयर फाउंडेशन के नाम से है, and साईं श्रद्धा सबूरी टाइम्स also. So we have a website, you can reach us. ठीक है, I'll drop down the link in the description. I'll drop down there. I can share my number also. Definitely. 9971 807001. Sorted. I'll also drop this down the number in the description. You guys can have a look, and in case if anybody is looking for, I mean, if you have that abundant space of, promoting, supporting, I feel like I love volunteering. So, if that would be in my hand, I would have definitely done it. But in case if you want to make a group or something and start it over here also in Noida or Ghaziabad, I am also in for that. I would love to do that with you. Apart that, मुझे मैम ये जानना है कि if somebody is initially starting with all of this, जैसे आपके टाइम तो inner calling थी, but I believe inner calling से ज़्यादा कुछ inner belief भी होता है कि हाँ, was that from the school time, मतलब was that from a very childhood age कि ऐसा कुछ करना है या नहीं? Actually, देखिए, there are 2 ways for learning in life. एक तो होता है कि we born and brought up, हमें अपने पेरेंट्स के साथ हम born and brought up होते हैं और easy life. मेरा लाइफ थोड़ा सा डिफरेंट रहा. इट्स अ स्ट्रगल. सो आई एम अ सिंगल चाइल्ड एंड आई लॉस्ट माई पेरेंट्स एट अ वेरी अर्ली एज. तो मुझे लगता है कि दैट इज़ योर कॉल कि आप उसको कैसे लेते हो. कुछ लोग कहते हैं यार मैं तो बहुत दुखी रहा, मेरे साथ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. इंस्टेड ऑफ यू शुड बी पॉजिटिव इन योर लाइफ. आप अगर पॉजिटिव हो, सी इफ़ यू आर पॉजिटिव, सो एवरी टाइम दैट चैलेंज विल टीच यू. तो दैट इज़ अ मेन बेस ऑफ लाइफ. आप अगर सीखते हो, अगर आप उसको लगता है कि हाँ हमारी लाइफ बहुत इजी है, तो इन एवरी स्ट्रगल, इन एवरी मोमेंट आई लर्न सो मेनी थिंग्स.
और हम सीखते गए और कारवा बनता गया। कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। राइट। और हम एक्चुअली हमारे बाबा कहते हैं कि बाबा ने यही सिखाया, सबका मालिक एक। तो और एक कोट है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि तेरी तकदीर से पहले खुदा तुझसे पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो दैट इज़, तो आप अपने आप, मतलब आप अपना रास्ता आपका अपने आप बनता चला जाएगा अगर आप खुद ज़िंदगी में कुछ करना चाहो। राइट। और मुझे लगता है मैम के साथ ये हमेशा बचपन से ही रहा, तो अभी भी जब हम ऐसे फेसेस करते हैं, ये चैलेंजेस आप अभी भी फेस कर रहे हो, तो भी आपका जवाब यही होता है कि इट हैज समथिंग टू लर्न यू विद। फील यस, मतलब एनी स्ट्रगल, एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन डू इट। राइट। तो बिकॉज हिज पावर इज विद मी, हिज सपोर्ट इज विद मी। और आप देखिए, बाबा और भगवान आप जिसको भी मानते हो, योर गुरु, तो वो भी यही कहते हैं कि आप एक कदम बढ़ो मैं 10 कदम। हमारे बाबा बोलते हैं आप एक कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तो आपको एक कदम तो बढ़ाना ही है, आपको खुद सोचना पड़ेगा आपको करना क्या है। हाँ। तो रास्ते अपने आप खुलते चल जाएंगे। हम यूनिवर्स को जो देते हैं वही हमें रिटर्न मिलता है, राइट। आइदर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। तो आप तो अभी जब आप ऐसे बच्चों को एजुकेशंस देते हो, आपने बोला डिसेबल्ड भी हैं कुछ बच्चे, हैंडीकैप भी है हमारे पास, तो हाउ डू यू मेक देम डील विद ऑल द चैलेंजेस? उनके दिमाग में हम कैसे पॉजिटिविटी भरते हैं कि दिस इज समथिंग दैट विल टेक देखो, सबसे पहले तो पॉजिटिविटी, बिकॉज द मोमेंट दे एंटर्ड, हाँ। और सबसे पहले वो बाबा को हक करते हैं। ओह, तो सारी एनर्जी तो उनसे ही मिलती है। और बाकी यस, हम देखिए बच्चे तो भगवान का रूप है। हाँ। आप जैसा उनसे डील करते हो वो वैसा इंटरप्रेट भी करते हैं, एक्चुअली मोल्ड भी हो जाते हैं उस तरीके आपको से। भी विजिट, मतलब इतना अच्छा लगता है कि ऑन माई बर्थडे, ऑन माई, हाँ। मतलब इतने अच्छी चीज, बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स बना करके लाते हैं। ये बच्चों ने ही बना के दिए मुझे अपने हाथ से। अरे कितना प्यारा। There is a 7 years girl, हाँ हाँ 7 years old. हाँ। And see, she's wearing that today. Oh my God, that is so this is beautiful. actually, I feel that it's a blessings. हाँ, एक्चुअली मतलब मुझे लगता है कि भगवान जी ने या फिर बाबा जी, जैसे जो भी है, जो भी हम मानते हैं, उन्होंने फिक्स कर रखा होता है कि हाँ Yes. दिस पर्सन विल गो एंड डू ऑल ऑफ दिस इन द लाइफ। Without, हाँ, उन्हीं की, देखिए जब तक उनकी रजा नहीं होगी ना तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, We all are chosen by him. right, every single thing and Every every single bit thing. of every Yes. cell of us is just made by him. All right, talking about if anybody is just going through a little sort of hard time right now, what is your piece of advice that you want to give? देखिए, हार्ड टाइम कुछ भी नहीं होता, ये हमारी लाइफ के कुछ मोमेंट्स होते हैं। हाँ, जैसे हमें लगता है ना, हमें कोई, सी इफ़ यू आर वेयरिंग अ क्लॉथ, हमने हाँ. कभी कोई कपड़ा पहना, हाँ. तो हम मिरर के सामने पड़ते हैं, हमें लगता है नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या होगा, आप उसको उतार दोगे ना। हाँ, जस्ट रिमूव इट, राइट, यू विल बी कंफर्टेबल। हाँ, और जब तक आपने वो पहना हुआ है तब तक वो आपको अनकंफर्टेबल लग रहा Uncomfortable है। लग तो रहा कोई भी प्रॉब्लम आती है, इट्स द सेम थिंग, दैट इज़ योर थॉट, योर हेयर। तो प्रॉब्लम इज नॉट मेंट फॉर यू, यू हैव द सोल्यूशन। आपकी प्रॉब्लम आने से पहले सोल्यूशन होता है। फिर भी मतलब मुझे लगता है कि आई एम इनटू मेडिटेशन ऑल्सो। Okay. मैं काफ़ी हीलिंग करती हूँ, बाबा से कन्वर्सेशन। तो बाबा ने मुझे सिखाया कि आपको लगता है कि यस मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, हाँ. तो जस्ट क्लोज योर आइज, ओके, टेक डीप ब्रेथ, और आप अपने आप से पूछो, यू विल गेट द आंसर। आंसर, इंस्टेड ऑफ शेयरिंग विद एवरीवन योर प्रॉब्लम, आंसर इज इनसाइड यू, besides you. You just find yourself. Be with you. आप अपने साथ हो, तो सारे जहाँ आपका है। मतलब you just have to sit with yourself for that Yes. period of time. वो आंसर वहीं आसपास ही आप ही के पास है आंसर। राइट, बिकॉज प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों पैरेलल चलते हैं। ओके। ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं कि वो आप देखिए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आने से पहले ही सोल्यूशन आपके पास तैयार होता है। मतलब मैं तो बहुत डरती हूँ प्रॉब्लम से कि कुछ हो जाएगा तो कैसे सॉल्व होगा। बट ऐसा सिटिंग, जैसे वी हैव 2 आईज ना, हाँ, तो एक आई आपको लग रहा है इधर से प्रॉब्लम है, तो इधर से यू हैव सोल्यूशन। जस्ट क्लोज योर आइज, टेक डीप ब्रेथ, एंड यू विल गेट द सोल्यूशन। मुझे ना इस बिलीव के साथ साथ आपकी एनर्जी भी इतनी ज़्यादा सेंस हो रही है ना कि मुझे लग रहा है कि एक्चुअली ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। मतलब जब मैं अकेले बैठती हूँ ना, आई सिट विद ऑल ऑफ माई थॉट्स, तो मेरे को लगता है अच्छा कैसे होगा, बट नाउ आई एम सिटिंग विद यू एंड यू जस्ट सो कामली लाइक कि इधर से प्रॉब्लम आती है, इधर से उसका सॉल्यूशन आता है, तो हम लाइक ऐसा भी कुछ होता है। इट्स सो मैजिकल। आप देखिए, वैसे तो अगर मैं अपने मिरेकल्स की बात करूँ तो इट्स अ बिग, मतलब मेरी लाइफ छोटी पड़ जाएगी। एवरी मोमेंट इज मिरेकल, बट मैं आपको बहुत इन शॉर्ट बताती हूँ। एक्चुअली इट्स अ बिग स्टोरी, हाँ, बट आप देखिए, इट्स 2016 इट वाज, ऑन मेडिकल रिपोर्ट
As Okay. per medical report, I lost my vision. I'm blind. And after 6 months, doctor discharged me, All India Medical, कि you will not have no more vision in your life. तो अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखो, बच्चे छोटे हैं, सो एन्जॉय योर लाइफ. तो मैं उनको बड़ी ईजिली बोल रही हूँ, ठीक है, अभी तक आपका ट्रीटमेंट हुआ, मेरे बाबा करेंगे. सो ठीक है, आई वॉन्ट टू गो बैक टू होम. मैं घर पहुँचती हूँ, आई सिट माई बेड, लाइंग डाउन ऑन माई बेडरूम. मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ, प्लीज़ आप लाइट्स ऑफ कर दो. अब वो बोल रहे हैं लाइट्स तो ऑफ है, मतलब बिकॉज एवरीबडी इन दैट सेम फ्रेम ना, कि आई एम ब्लाइंड नाउ. 6 मंथ बहुत होते हैं. हाँ. घर में सभी इसी फ्रेम में थे. और कह रहे लाइट्स ऑफ है. मैं कह रही लाइट्स ऑन है, प्लीज़ आप लाइट्स ऑफ करो. एंड हिज वॉल्यूम म्यूट कर दिया टीवी का भी, कि अब देखो टीवी बंद है, लाइट तो आप आराम से सो जाओ. मैं कह रही नहीं, आपने टीवी की वॉल्यूम बंद करी है, बट टीवी ऑफ नहीं है. तो हमारी अच्छी खासी आर्गूमेंट हो रही है. देन इवन आई डिडंट रियलाइज़ कि मुझे दिखना स्टार्ट हो गया. अब मुझे दिखना स्टार्ट हो गया था. मैंने आज स्टार्ट शॉटिंग ऑन माई हस्बैंड कि मुझे दिख रहा है, आप क्यों नहीं मान रहे. कह रहे डोंट टेक स्ट्रेस, तुम्हें मालूम है यू आर ऑन मेडिकेशन. एंड देन ही कॉल डॉक्टर. और डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको बोला ना स्लीपिंग पिल्स दी हुई हैं, तो आप उसको स्ट्रेस मत दो, न्यूरो को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा. मैं आई पिक द फोन. मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मुझे बताओ कौन सी न्यूज़पेपर का कौन सा सेक्शन पढ़ के दिखाऊँ, आई कैन सी एवरीथिंग. एंड दैट डे इट्स बीन 6, आई एम नॉट ऑन मेडिकेशन. तो अभी मतलब काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि आप लेंस यूज़ करते हो, हाँ. बट आई एम नॉट यूजिंग लेंस, आई एम नॉट ऑन मेडिकेशन. इट मीन 16 years आई एम एन्जॉइंग द वर्ल्ड. दिस इज एक्चुअली अ फेथ. Right. ब्लेसिंग्स तो यस, बट आपका विश्वास, आइदर योर पेरेंट्स, आइदर योर गुरु, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए. आपका विश्वास है तो यू कैन डू वंडर्स. तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्ट. बस फेथ होना चाहिए, Faith होना बिलीफ चाहिए. होना चाहिए, सब पॉसिबल है. Faith and patience. Okay. The 2 things will take you forward in life. और मेरे को लगता है साथ साथ आपका वो जो माइंडसेट है कि हाँ सब हो जाएगा, सब सॉल्व हो जाएगा, ही इज देयर. बट अगेन वो फेथ और बिलीफ से ही आता है. सो आई बिलीव यू नो दैट इज समथिंग. एनी अदर थिंग दैट यू वांट टू शेयर अपार्ट ऑल ऑफ दिस, यू नो व्हाटएवर वी हैव टॉक्ड अबाउट, एनीथिंग स्पेशल दैट यू वांट टू टॉक अबाउट, एनी मिरेकल, एनी स्टोरी दैट यू वुड लाइक टू यू नो टेल द मेरे ऑडियंस. का तो मेरा बहुत सारे वही मैं बोल रही हूँ ना. बट हाँ, मैं अपनी सेवा के बारे में ज़रूर, बिकॉज हम लोग विंटर्स में हम लोग ब्लैंकेट ड्राइव करते हैं. ओके. दैट इज़ ऑन कंटिन्यू एवरी विंटर्स. हम लोग का टारगेट होता है 7 to 10,000 ब्लैंकेट्स. सो एंड येस, आई ऑलवेज थैंकफुल कि आई एम ब्लेस्ड. मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, ही इज़ वेरी सपोर्टिव. तो रात के 2 बजे भी बोलो तो अब ब्लैंकेट ड्राइव करना, तो यू नो इट स्टार्टेड, तो ही ऑलवेज सपोर्टिंग मी. तो ब्लैंकेट्स ड्राइव है, बच्चों के लिए हमें कभी कुछ लेने जाना है. हाँ. और मेन बहुत इंतज़ाम और बहुत मोटिवेशन होता है, एनर्जेटिक, कि लाइक इवन आवर स्टाफ और सम जो हमारे सपोर्टर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, किसी का भी बर्थडे या एनिवर्सरी होती है तो लाइक एज योर बर्थडे आपने मुझे जस्ट व्हाट्सअप मी कि टुडे इज़ माई बर्थडे. हाँ. तो वी आर सो हैप्पी. तो हम बच्चों को बोलते हैं ठीक है लेट्स सेलिब्रेट. तो हम लोग वीडियो कॉल पे विल टेक यू हाँ. एंड केक एवरीथिंग विल ऑर्गेनाइज. सब कुछ हुआ बिकॉज वी हैव अ इन हाउस किचन. Right. वो बन जाता है और उनको सेलिब्रेट करते हैं. तो किड्स विल हैव डांस पार्टी एंड whosoever want to come, हाँ. हाँ. फिर तो एक अच्छा हो गया ना कि यस दे कैन कम एंड सेलिब्रेट. मुझे तो ऐसा लगता है कि every birthday, you know, people should go and enjoy with them. Enjoy Those with them. kids would be so happy, you know, बिल्कुल. taking, you know, and I believe मतलब same ही transmission होता है, इतना positive energy आपको भी आ जाता है ना And birthday they वाले are दिन. so loving actually. Yeah. They need, because उनको कुछ चाहिए नहीं, बस They're there. yes, Yeah. they are there. And if somebody will join them, हाँ. तो They're more than उनको लगता है, happy. ये happy, Yeah, yes. they're more than happy. Those warm hugs and you know all of that. So that's something very beautiful. So if somebody is looking forward and they are having their birthdays in line, do go check them out. You know. देखो they are slum. हाँ. But अगर हम अपने बच्चों की बात करें, हमारे बच्चों को तो पार्टी अच्छी लगती है ना. बहुत. That's same way. तो हमें जो अच्छा लगता है वो अगर हम दूसरे के लिए करेंगे तो उसकी जो मिठास है इट्स बिकम मल्टीप्लाई. राइट. हम जैसे वो बोलते हैं ना कि ट्रीट योरसेल्फ द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड, सो ट्रीट पीपल द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड. सो दैट इज हाउ इट थिंग्स हैपन कि हाँ वैसे ही उनको फील कराओ, वैसे ही उनको महसूस कराओ. ऑफ कोर्स इट विल कम बैक टू यू इन द यू नो इन द रिटर्न, आई शुड से. ऑल राइट. सो यू नो almost a wrap, but before a wrap I would have this rapid fire quick round with you. जिसमें मुझे ये जानना है कि one piece of advice that is still with you.
What kind of advice I didn't get? Like, आई मीन एज सच कोई भी ऐसी एडवाइस जो स्टिल अभी भी आपके साथ है, मतलब रह गई है आपके साथ? देखिए अभी तो हमें ब्रांचेस ही खुलने हैं, मतलब आई वांट टू एक्सपेंड दिस रसोई, बिकॉज अभी तो राइट नाउ वी आर ऑन रेंट, ओके. तो दिस इज अ रेंटेड प्रॉपर्टी, बट माई ड्रीम एक्चुअली, माई like one, that basement should be a whole langar hall that's free of cost. Anybody can come and have. राइट. And ground floor पे हम एक meditation hall बनाएंगे, so people come instead of gossips everywhere. आप आओ और भगवान के पास बैठ करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर ले, leave it, राइट. leave your negative energy and take the positive energy bes वो with जो you. सेफ स्पेस Safe क्रिएट space. करना होता है. Yes, meditation hall. And yes, I want to work for old age people also. That's so nice. मतलब मुझे अब लगता है कि everybody who's watching the podcast can join you in some way or the other, क्योंकि हमारे पास सारी जनरेशन, सारे एज के लोग हैं, सब आसपास ही हैं, you know, teenagers. If you want to just help them with education, if you want to help in रसोई or something, if you are into, you know, broader perspective where you're looking to open a branch sort of something where at any place, वरना उसके अलावा अगर सिर्फ बेसिक सी चीज़, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें हर जगह या हर बारी ना पॉजिटिविटी हम ढूंढते रहते हैं हर जगह. सो वी हैव दैट वन प्लेस टू सिट विद, you know, the almighty God or the almighty presence that is she's talking about, and you know, I believe that is so beautiful. It is just giving me goosebumps. I'm like, बड़ा छोटा सा इंसिडेंट शेयर करती हूँ. हम लोग जो सेवा करते हैं 5 रुपीज़ की, इट्स बीन 7 years नाउ. एक ऑटो रिक्शा सरदार जी आते हैं हमारे यहाँ. ठीक है. डे 1 से ही इज कमिंग. हाँ. तो बिफोर 7 years मतलब हम लोग फ्री ही करते थे ड्यूरिंग द कोविड, एंड इट्स ऑलमोस्ट 7 years नाउ. हमने 5 रुपीज़, इट्स नॉट 5 रुपीज़ के हमें 5 रुपीज़ लेनी है. अगर आप somebody don't have, तो हमारा एक हुंडी बॉक्स है, अगर आपके पास 5 रुपये तो we'll give you the meal. ऐसा नहीं है कि नहीं देते. एक सरदार जी हैं, उनकी वाइफ को कैंसर है, एंड ही इज हैविंग 5 daughters. और वो जब भी आते थे वो बाहर बैठ कर के कहते थे, बेटा सच में 5 रुपये में मिलता है? कहते हाँ अंकल आप पहले खाइए ना. तो कहते मुझे तो एक टाइम खाना खाना होता है. देख, तो काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन से होती थी. अंकल क्यों, ऐसा क्यों? मेरी 5 daughters हैं और अभी तो किसी की मैरिज नहीं हुई है, अभी तो सब पढ़ रही हैं, और मेरी वाइफ को कैंसर है और लास्ट स्टेज है. अब तो कहते हैं मैं मटर कुलचा खाता हूँ, एंड विच इज़ मैदा, और वो 60 रुपीज़ का प्लेट, तो 1 time इन अ डे. तो कहते हैं अब वो डेली आते हैं, अभी भी, आज भी आप कभी आओ, मतलब उनका फिक्स टाइम है 12:30 ही इज़ देयर. वो डेली आकर के ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं. वो 5 रुपये हुंडी में डालते हैं और 5 रुपये का खाना भरपेट खाते हैं. कहते हैं मैं 60 रुपीज़ का मटर कुलचा खाता था, और मैं 5 रुपये का खाता भी हूँ और पार्सल भी कराता हूँ, तो मेरा रात का भी खाना. और कहते हैं मेरी वाइफ तो वहाँ से बैठ करके, दे आर फ्रॉम पंजाब, मेरे रोज़ वो मुझे फ़ोन पर ब्लेसिंग्स देती है. आई एम सो हैप्पी कि आप दोनों टाइम का खाना खा पा रहे हो, और फिर आपका नाम ज़रूर आता है. तो मैंने कहा वो एक्चुअली हमारा नहीं है, वी शुड थैंकफुल टू यूनिवर्स, बाबा. तो जो करा रहे हैं हमें उनका थैंक, दैट इज ऑल ब्लेसिंग्स एक्चुअली. तो बड़ा अच्छा लगता है. देखो 5 रुपीज़ इट डजंट कॉस्ट, लगता है कि हाँ अगर आप किसी का पेट भर पा रहे हो, उससे बड़ी कोई बात नहीं है. क्योंकि कहते हैं ना, खाली पेट तो भजन भी ना होए. तो आप अगर भक्ति भी करना चाहते हो, तो एटलीस्ट आपको खुद को एनर्जी से, अच्छे मील से, हेल्दी मील से, और हम जैसा खाते हैं वैसा मतलब बाहर भी आता है. हाँ, हमारे बोल भी वैसे होते हैं एक्चुअली. हाँ, वो दिल का रास्ता भी पेट से होके जाता है. ठीक है. ऑल राइट. यू नो, आई बिलीव एक ऐसा सॉन्ग या फिर एक ऐसा भजन, मतलब जिसके साथ भी आप बहुत ज़्यादा रिलेट करते हो. मैं तो वैसे साईं धुन से ही रिलेट करती हूँ. और उसके अलावा मैं अगर पूछूंगी भी ना कि आपका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला क्या है, तो मुझे पता है आप बोलोगे कि मैं तो जाके बाबा को हक कर लेती हूँ, ये तो मुझे पता है. बट इफ़ एनी बडी हु इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट इन लाइफ राइट नाउ, या उसको लग रहा है, उसको डर भी लग रहा है, और दैट पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ यू नो इमोशंस, और वो वेरीफाई नहीं कर पा रहा, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? बिकॉज आई बिलीव आपकी इतनी बात होती है बाबा से, एंड यू नो आप इतने ज़्यादा उसके लिए हाँ बेस्ट है कि आप जो भी आपके नियर बाय मंदिर है, आप बाबा की उदी लीजिए. हाँ. और उदी इज सो पावरफुल कि मतलब आई एम द विटनेस कि कैंसर की बीमारी तक ठीक हो जाती है उससे.
जस्ट अप्लाई ऑन योर फोरहेड, हाँ पिंच ऑफ मतलब पिंच आप ऐड करो एक वाटर ग्लास में, ग्लास ऑफ वाटर में, हाँ जस्ट हैव इट एंड सी द वंडर्स. और फिर भी आपको लगता है कि आई एम फीलिंग वेरी लो, हाँ जस्ट टेक अ कैम्फर, ओके. स्मेल इट, दैट्स इट. मैंने सुना मैम कैम्फर जलाने से भी अगर घर में कैम्फर जलाने से नेगेटिविटी दूर होती है. हाँ Yes. मैंने वो भी बट सुना है. आपको लगता है कि देखो कैम्फर जलाने से घर की आपका जो ऑरा है, नेगेटिव हाँ. ऑरा, वो दूर हो रहा है. बट हमारा इनर ऑरा जो है वो कैसे, तो कई बार होता है ना, हमें वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, मैं ये करूँगी कि नहीं करूँगी. हाँ. कई मैंने आप काफ़ी हमारे यहाँ बच्चे आते हैं हाँ. कि मैम हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हाँ. और आई एम फीलिंग वेरी लो, मुझे बहुत वीकनेस लग रही है. हाँ. तो जस्ट ट्राई इट वंस. आप एक कैम्फर लो, हाँ. स्मेल करो, हाँ. सी द एनर्जी. नाइस. कैम्फर इज वेरी पावरफुल एक्चुअली. अच्छा मैंने ना आपके लिंक्डइन पे भी एक द मैन ही रिटर्न करके कुछ वो देखा था. आई डोंट नो इट्स अ सीरीज और इट्स अ कमबैक थिंग. व्हाट वाज दैट? एनी आइडिया अबाउट इट? बहुत सारी है एक्चुअली, इतना नहीं है. अच्छा मतलब ये सारी स्टोरीज ही हैं जो स्टोरीज हैं जो हमारे यहाँ डेली अभी देखिए लास्ट वीक का है, वॉक इन था. हाँ. इसलिए हम लोग सेवा कर रहे थे. हाँ. और 22 years old, शी फॉल डाउन, दैट गर्ल शी फॉल डाउन. ओके. और भाई होता है ना, क्या हुआ, बच्चा हाँ, है, हाँ, शी इज गर्ल. हाँ. तो उनके फादर्स आते, भाई क्या हुआ क्या हुआ. हाँ. तो बोले कि इसको ना एक्चुअली मैम होता है कि आई डोंट नो, बेसिकली शी इज़ अ वेरी गुड डांसर, ओके. बट पता नहीं क्या होती है, खड़े खड़े गिर जाती है. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पानी वानी पिलाओ ठंडा, आप अंदर लेकर आइए. हाँ. वो बाबा जी के पास लेकर आए. देखिए आई एम नॉट अ हीलर, मतलब मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, आई एम नथिंग. बट मैंने बाबा के चरणों पे हाथ रखा, उसको थोड़ा सा उदी पानी पिलाया और उसके सर पर हाथ रखा. मैंने कहा आप थोड़ी देर बैठो, बाबा का प्रसाद खाओ. उसने प्रसाद खाया और उसके फादर बोला आप एक बाबा के लिए नारियल लेकर आओ. ही ऑफर द नारियल, कोकोनट, एंड हाफ एन आवर के बाद शी स्टार्ट डांसिंग. अरे अभी एवरी थर्सडे दे आर देयर, एवरी थर्सडे. तो अभी लास्ट वीक इवन आई वाज इन शिरडी, तो माई स्टाफ टेक द वीडियो. उसने कहा कि नाउ आई एम ऑल राइट. और अब मैं बच्चे जो आपके यहाँ आते हैं उनको डांस सिखाना चाहती हूँ. अरे दिस इज सो नाइस. दिस इज ऑल मिरेकल एंड these are the wonders actually. राइट. मतलब आपको पता नहीं चलेगा कब एक सेकंड में चीजें कैसे हाउ दे हैव टर्न्ड आउट सो ब्यूटीफुली. बट इट्स ऑल अबाउट अगेन फेथ, बिलीफ. आप मानो तो चीजें होंगी. ऑल राइट. बहुत बार बोल चुकी हूँ, इट्स अ रैप कमिंग टू एन एंड. बट हमेशा मैम के पास कुछ ना कुछ स्टोरीज होती हैं और मुझे लगता है कि आपके पास तो पिटारा होगा इतनी सारी स्टोरीज का, इतनी सारी कहानियां का. कुछ और है जो आप बोलना चाहते हो बिफोर वी एंड अप एंड आई से थैंक यू टू देम? This magazine which I'm talking about, this magazine actually 22 years old publication, साईं श्रद्धा सुबरी टाइम्स. तो इसमें हम बाबा के भक्तों के एक्सपीरियंस, मिरेकल स्टोरीज कवर करते हैं. ओके. विच इज इफ यू वांट टू शेयर द एक्सपीरियंस, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. वी डोंट चार्ज. आप देख अभी जैसे मनोज कुमार जी, ही वाज अ स्टॉन्च डिवोटी ऑफ साईं बाबा. तो इतने जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं और जितनी भी स्टोरीज हैं और शिरडी संस्थान के सारे अपडेट्स, सी दिस इज एक्सपीरियंस, डिवोटीज एक्सपीरियंस, ये हम कवर करते हैं. इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, वी डोंट चार्ज एनीथिंग. आवर टारगेट, हमारा जो एम है, लोगों को बाबा से जोड़ना. That's it. बाकी बाबा एंड He'll see. He'll do everything. So हाँ, if you want to subscribe it, that is a very small token of amount. You can contact us. हाँ. बाकी news, articles, devotees experience, that is all seva. Right. Don't charge anything. Right. It will reach at your place. I mean, I believe this whole podcast was a beautiful session of, knowing stories, miracles, how she has been doing a lot of things. But मुझे ऐसा personally लगता है कि, बहुत time से मैम is doing, and now it's our time to support her in every possible way, in whatever way we can. मतलब even if it is that small token amount of money, मतलब जैसे हमने पूरे podcast में बात करी कि 5 rupees is nothing. मतलब मुझे लगता है अगर हम खाना खाने कहीं बाहर भी जाएं, कितना महंगा महंगा खाना खा लेते हैं, but that 5 rupees is nothing. पर उससे ये हो सकता है कि if you put in that amount of money, maybe somebody will be eating. And मुझे ऐसा लगता है if you put in goodwill,
गुड डीड कम्स बैक टू Good यू deed. इन एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग. मतलब हर छोटी चीज़ जो हम करते हैं वो वापस आती है हमारे पास. एंड मेरे को ऐसा लगता है कि इफ़ I am able to support this in any possible way with the audience that I have, I will be more than happy. I personally will be doing, मैं जिस Thank you तरीके so से भी कर पाऊंगी. So yeah, that's a wrap, coming to an end, and I hope you really like the story, the podcast and everything. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको miracles और सुनने हैं तो हम मैम के पास जा सकते हैं और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ बैठ के उनके एक्चुअली प्रेजेंस में, बाबा की प्रेजेंस में एक्चुअली सुन सकते हैं. बिकॉज मैम ने मेरे से पूछा था कि आप डिवोटी हो. मैंने कहा मैं तो डिवोटी नहीं हूँ, पर आई वुड लव टू गो मीट हिम, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे सब है तो एक ही ना. इट्स ऑल द सेम बिल्कुल, एनर्जी, बिल्कुल. द डिवाइन एनर्जी, रिगार्डलेस ऑफ हमने कितने रिलीजन्स में बांट लिया हो या कितने There भगवानों is में a बांट supreme लिया हो. power, and Exactly. it's a one only. It's one only and it's there. So why हमारे not? तो बाबा बोलते ही हैं सबका मालिक एक. Yeah, that's an end. We'll go and मेरा मौका लगा तो I'll click a video, picture and everything. I'll post it on social media handles as well. So do not forget to follow, comment, subscribe and do whatever you can in whatever way you can. That's it. Thank you.